Hello, I welcome you all to my channel KS Wala. As you know that this lecture series mein we are discussing about the J&K Reorganization Act of 2019. Till now what we have discussed is that the historical background of the princely state of J&K and from time to time क्या changes लाई गई, जिन changes की वजह से धीरे धीरे special status छीना गया J&K state का, and at the end in 2019 how actually the article which made J&K special, that was Article 370, it was totally abrogated and the changes were being made and the status जो J&K का रखा गया, that it was being made like a UT and it was bifurcated into two parts. That was UT of Ladakh was being separated from the UT of J&K and we saw that in this act there were actually 14 parts and 103 sections. So what we have to do now, we have to discuss all these things जो भी sections इसमें है in parts, 14 parts जो भी होंगे. So one by one we will discuss these parts as well as sections which are in those parts, starting from actually the first part. First I will mention the heading of this act, that is J&K Reorganization Act of 2019. So starting from part first, what part first is actually, हम हर एक part का नाम देखेंगे and the sections, हर एक part में कितने sections आते हैं वो sections भी हम साथ साथ discuss करते जाएंगे. But I will mention here कि all of the sections are not important for we people. We don't have to remember 103 sections. So whatever important sections are there which are concerned to the different examinations, be it UPSC or JKPSC or JKSSB, so जो भी important इस in exams के लिए है तो I will mention those sections only. So but we will be knowing that हर एक part में कितने कितने sections हैं. So starting from first part it will be having two sections. तो यहीं पे हम heading में ही बताएंगे हम section 1 and section 2. So it is having two sections and इस part first का नाम क्या रहेगा? It will be preliminary. Preliminary में क्या है? दो sections. First is section 1. What section 1 is actually having, इसमें क्या लिखा गया है? Name of the act. As we all know that name of the act क्या है? J&K Reorganization Act. So that same name has been provided into the section 1. So you can say the name of the act. That is all which section 1 is having. Second is section 2 जो है इसी एक्ट का. सेक्शन 2 में क्या है? डेफिनेशंस दी गई है. फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ J&K तो उसको डिफाइन किया गया है, या कोई भी वर्ड्स जो यू कैन से पॉलिटिकल वर्ड्स है, ऑल दोज वर्ड्स आर बीइंग डिफाइंड व्हिच आर नॉट एक्चुअली यू कैन से दैट अंडरस्टैंडेबल फॉर द कॉमन पीपल. सो उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है, डेफिनेशंस दी गई है किसमें? सेक्शन 2 में. सो विल सिंपली से दैट दिस सेक्शन कंटेन्स डेफिनेशंस. ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट पार्ट फर्स्ट. सो यू कैन से इट्स अ बेसिक, जिसमें बस नाम बताया गया एक्ट का क्या रहेगा. नाम क्या होगा इसका? J&K Reorganization Act of 2019. और बाकी डेफिनेशंस लाइक असेंबली क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ J&K, उसको डिफाइन किया गया असेंबली क्या है, LG क्या होगा, CM कौन क्या है, तो इन चीजों को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 में. सो आफ्टर दिस वी आर हैविंग द पार्ट सेकंड. Part second is actually concerned with the reorganization of the state of J&K कि इसका क्या क्या बनाया गया. जो existing state थी जम्मू एंड कश्मीर state, we know that इसमें 3 regions थे. One was the region of Jammu, other was the region of this Kashmir, and third was the region of Ladakh. So what happened after this act when it was enacted? What happened with the J&K state? वो किसमें बताया गया है? Part second में. The sections which are there in part second, the sections are from section 3 to section 7. And you can say the heading of this part will be reorganization of J&K state. J&K state के साथ क्या reorganization हो गया. So इसी में section 3 पहले कहता है आप हमसे. Section 3 mentions about the UT of Ladakh. Section 3 में ये लिखा गया कि Ladakh UT will be formed. ठीक है, और इस यूटी में 2 डिस्ट्रिक्ट्स होंगे. 2 डिस्ट्रिक्ट्स कौन से होंगे? एक तो होगा कारगिल एंड अदर विल बी डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेह. सो कारगिल एंड लेह आर द 2 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द यूटी ऑफ लद्दाख एंड इट विल बी अ यूटी विदाउट लेजिस्लेचर.
विदाउट लेजिस्लेचर। व्हाट डज दैट मीन कि क्या लेजिस्लेचर से क्या मतलब है हमारा कि लद्दाख यूटी में कोई भी एमएलए नहीं बन सकता, जो भी वहां की कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगी। वैसे तो अब कॉन्स्टिट्यूंसीज है नहीं, क्योंकि दैट इज यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या होता है? स्टेट जैसे बाकी नॉर्मल स्टेट्स है उनका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, वही उसका लेजिस्लेचर है। तो उस असेंबली में बैठते कौन है? द एमएलएज ऑफ दैट स्टेट। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए चुने जाते हैं एंड हु रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज इनटू दैट असेंबली। सो लद्दाख यूटी के लिए लेजिस्लेचर नहीं रखा गया, विच मीन्स दैट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं रखी गई। फिर इसके बाद नेक्स्ट दैट वाज सेक्शन 4, as we have to discuss 3 to 7, but as I have mentioned earlier that subsections हमारे लिए important नहीं है, so I will mention only the important ones. So next section will be section 4. सेक्शन 4 क्या कह रहा है और क्या हो गया जेएंडके स्टेट के साथ? एक तो लद्दाख यूटी बन गया, सेक्शन 3 ने वो कहा। सेकंड वाज जेएंडके यूटी। सेक्शन 4 ने क्या कहा कि जेएंडके यूटी बनाई जाएगी जिसमें बाकी सब डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे एक्सेप्ट 2। दो कौन से थे? कारगिल और लेह, ये चले गए लद्दाख यूटी में। जितने भी बाकी डिस्ट्रिक्ट्स बच गए वो किस में आएंगे? जेके यूटी में। सो जेके यूटी वाज फॉर्म्ड व्हिच कंप्राइज्ड ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट्स एक्सेप्ट दिस लेह एंड कारगिल। बट हियर वाज the next change which was there, that was this UT was being created with legislature. What does that mean with legislature? यहां पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रहेंगी जेएंडके यूटी में और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमएलए चुना जाएगा जो रिप्रेजेंट करेंगे अपने लोगों को, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग होंगे। तभी हमने देखा इन 2024 जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस हो गए उसके लिए, एंड वी कैन से दैट चोज द एमएलएज, एंड फिर उन्होंने जाके सीएम को चुना, विच वी नो दैट उमर अब्दुल्ला इज द सीएम ऑफ जेएंडके यूटी, एंड बाकी हम जानते हैं जो लोकल एमएलएज हैं वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज जेएंडके यूटी with legislature, and I mentioned that it comprised of other districts except Kargil and Leh. After that next section will be section 5th. सेक्शन 5 किसके बारे में कह रहा है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नर था जेएंडके स्टेट में, जब तक ये स्टेट था 2019 तक यहां पे कौन होते थे? गवर्नर होते थे। लेकिन इस सेक्शन ने कहा उसको रिप्लेस किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी, जो हम जानते हैं राइट नाउ मनोज सिन्हा इज द एलजी ऑफ जेएंडके यूटी। सो दिस सेक्शन वाज देयर, सेक्शन 5th, which actually provided this that governor will be replaced by the lieutenant governor, और इस लेफ्टिनेंट गवर्नर को कौन अपॉइंट करेगा? इट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड उस टाइम पे जब ये एक्ट आया था, सेक्शन 5 ने कहा कि ये जो एलजी है ये सिर्फ जेएंडके यूटी के लिए नहीं होगा, इट विल बी ए कॉमन एलजी फॉर लद्दाख यूटी एज वेल। सो पहले जो एलजी था इट वाज फॉर बोथ यूटीज, सेम एलजी होते थे, एक ही एलजी था फॉर द यूटी ऑफ जेएंडके एज वेल एज फॉर द यूटी ऑफ लद्दाख। बट आगे चल के फिर दोनों यूटीज के एलजीज को अलग किया गया। आजकल हम जो देखते हैं इन 2025 देयर इज अ सेपरेट एलजी फॉर लद्दाख यूटी एंड द सेपरेट एलजी फॉर द जेएंडके यूटी। So this was all about this part, part 2nd. We discussed 3 sections into this part. बाकी जो 6th and 7th sections है, they are not important for we people. So these 3 sections are the important. So I mentioned what these 3 sections are actually providing for the J&K UT as well as for the Ladakh UT. इसके बाद next part जो होगा that will be part 3rd. अब part 3rd जो है it's one of the biggest part, not one of the, सबसे बड़ा जो पार्ट है वो पार्ट 3rd ही रहेगा इस पूरे एक्ट का, बिकॉज इट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ सेक्शंस फ्रॉम सेक्शन 8 टू सेक्शन 57. सो फ्रॉम 8 टू 57 हर एक सेक्शन किस में आता है? इस पार्ट 3rd में, एंड दिस पार्ट 3rd इज एक्चुअली नेम्ड एज रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर, कि क्या जेएंडके यूटी और चाहे वो यूटी ऑफ लद्दाख है इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या रहेगी लेजिस्लेचर में। बट यहां पे मेरा लेजिस्लेचर से मतलब क्या है? मैं सेंटर की लेजिस्लेचर की बात कर रहा हूं, एज वेल एज इसी में फिर और सेक्शंस हम देखेंगे इसी पूरे पार्ट में, जहां पे हम देखेंगे जो यहां का लेजिस्लेचर है जेएंडके का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कैसे रिप्रेजेंटेशन रहेगी।
सो वी विल सी फर्स्ट सेंटर। अब हम जानते हैं सेंटर जो हमारा है वहां पे लेजिस्लेचर कैसा है, वहां पे पार्लियामेंट है हमारे पास। पार्लियामेंट इज हैविंग टू हाउसेस, वन इज लोकसभा, अदर इज राज्यसभा, ठीक है, जिसको हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा इज ऑल्सो कॉल्ड एज काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल या यू कैन से कॉमन हाउस, ठीक है। दोनों हाउसेस में कौन बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपीज जिन्हें हम कहते हैं, तो दे इट्स लेजिस्लेचर ऑफ द सेंटर। सो इन हाउसेस में जे&के और लद्दाख से कौन और कितने लोग जाएंगे वो पूरा इस पार्ट में दिया गया है, पार्ट थर्ड, एज वेल एज फिर हम यहां का भी लोकल डिस्कस करेंगे, जो यहां का लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा उसमें कितने मेंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, दैट विल बी आल्सो मेंशन इनटू दिस पार्ट थर्ड। फर्स्ट वी आर कंसर्न्ड विद द सेक्शन 8, जो इस पार्ट का पहला सेक्शन है, सेक्शन 8। ये सेक्शन 8 क्या कहता है कि सबसे पहले इसमें ये लिखा है कि देयर शुड बी द amendment in one of the schedules of Indian Constitution, that will be the 4th schedule। 4th schedule से क्या मतलब है, 4th schedule of Indian Constitution क्या कहता है, वो ये कहता है, उस schedule में ये लिखा है कि हर किसी स्टेट से कितने लोग आएंगे जो राज्यसभा में रिप्रेजेंट करेंगे अपने स्टेट को। That is written into the 4th schedule, or you can say 4th schedule mentions about the allocation of seats to the states as well as to the UTs which are having legislative assemblies। तो वहां से कितने लोग आएंगे और कहां बैठेंगे, राज्यसभा में। अब ये राज्यसभा जो है, यहां पे जो एमपीज आते हैं बन के, वो कैसे चुने जाते हैं एक्चुअली। अब देखो फॉर एग्जांपल लोकसभा इज देयर, लोकसभा में हम जानते हैं लोकसभा इलेक्शंस होते हैं जहां पे हम सब लोग वोट करते हैं हु आर अबव द एज ऑफ 18, और हम खुद चुनते हैं लोकसभा के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, एमपी चुनते हैं। दैट मींस वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जहां पे हम लोग खुद चुनते हैं कौन लोकसभा में रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन राज्यसभा में कैसे बैठते हैं एमपीज, कहां से आते हैं, जो स्टेट्स है। फॉर एग्जांपल इंडिया इज हैविंग 28 स्टेट्स एंड यहां पे 3 यूटीज ऐसे हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये कौन से, वन इज यूटी ऑफ दिल्ली, अदर इज यूटी ऑफ पुडुचेरी एंड थर्ड इज जे&के यूटी। तो इनमें लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए यहां भी बैठते हैं। अब राज्यसभा में कहां से एमपीज आते हैं बनके, जो 28 स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज है, जो एमएलए है, ये वोटिंग करते हैं और ये चुनते हैं कि कितने या कौन से लोग जाएंगे राज्यसभा में। लेकिन ये भी उतने ही लोग चुनते हैं जितना 4th शेड्यूल में लिखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4th शेड्यूल में लिखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी दिस स्टेट ऑफ जे&के, मान लो ये स्टेट था, तो ये पहले से ही 4th शेड्यूल में लिखा है कि जे&के स्टेट से कितने लोग आएंगे एज एमपीज ऑफ राज्यसभा, और ये किसके बेस पे डिसाइड होता है, ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बेसिस पे डिसाइड होता है किस स्टेट से कितने लोग आएंगे, कितने एमपीज आएंगे जो अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, राज्यसभा में, ठीक है। तब जाके फिर यहां के एमएलए जो है वो वोट करते हैं कि किसको भेजा जाएगा एज एन एमपी ऑफ राज्यसभा फ्रॉम द जे&के स्टेट। हर कोई स्टेट 28 के 28 स्टेट्स एज वेल एज दीज 3 यूटीज ये चुनते हैं, वहां के एमएलए चुनते हैं। इट्स नॉट, लोग डायरेक्टली वोट नहीं करते फॉर द एमपी ऑफ राज्यसभा, इट्स बाय द एमएलए जो वोटिंग करते हैं, वही चुनते हैं हु विल बी गोइंग टू एज एन एमपी ऑफ राज्यसभा। लेकिन ऐसा आई मेंशन्ड कि ये कितने लोग जाएंगे, नंबर ऑफ एमपीज इन राज्यसभा फ्रॉम एवरी स्टेट, दीज ऑल थिंग्स आर मेंशन्ड इनटू द 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब जब हमने देखा कि जे&के स्टेट का स्टेटस चेंज किया गया, लद्दाख अलग किया गया और जे&के अलग रखा गया, तो दैट मीन्स सीट्स में भी चेंज कहीं ना कहीं आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले चेंज ला रहा है किसमें, 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वहां पे भी चेंज करना होगा, नंबर ऑफ सीट्स कम होंगी या ज्यादा होंगी, वट एवर देयर विल बी, क्योंकि अब कम ही होगी क्योंकि लद्दाख को अलग निकाला गया, सो कम। इसीलिए अमेंडमेंट किसमें करना था, 4th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यही लिखा था सेक्शन 8 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इज सेक्शन 9th। सेक्शन 9th ऑफ दिस एक्ट विच एक्चुअली प्रोवाइड्स, अब सीट्स कितनी होंगी, पहले इसी राज्यसभा की बात करते हैं कि कितनी सीट्स होंगी राज्यसभा में, किसमें, दसा जो जे&के यूटी से जाएंगे। अब मेरा सवाल यह है, क्या लद्दाख यूटी से राज्यसभा में मेंबर्स जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर्स कौन चुनते, एमएलएज। लेकिन लद्दाख एक ऐसा यूटी है जहां पे एमएलएज नहीं है, जहां पे लेजिस्लेचर है ही नहीं, सो लद्दाख से कोई सवाल बनता ही नहीं है कि कोई एमपी चला जाएगा इनटू द राज्यसभा टू रिप्रेजेंट द लद्दाख यूटी। सो ऑप्शन क्या बचा, दैट जे&के इज द यूटी विद लेजिस्लेचर। सो जे&के से जा सकते हैं कौन, एमपीज ऑफ राज्यसभा। सो सेक्शन 9 ने यही कहा कि इसके 2 पार्ट्स एक्चुअली है। पार्ट ए, इसने कहा कि 4 सीट्स एलोकेट हो गए किसको, जे&के यूटी को, 4 सीट्स। सो 4
MPs actually go to Rajya Sabha who represent the J&K UT. तो ये लिखा था सेक्शन ए में कितनी सीट्स दी गई, 4 सीट्स। एंड इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, जो उस टाइम पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स थे राज्यसभा में, जब ये सब हो रहा था, जब 2019 में स्पेशल स्टेटस छीना जा रहा था J&K से, उस टाइम पे भी राज्यसभा में 4 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, J&K को। तो सेक्शन 9 के पार्ट बी ने ये कहा जो उस टाइम पे बैठे थे उनके टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, वो नॉर्मली जब तक उनका टर्म है वो वहीं रहेंगे, देयर विल बी नो चेंज इनटू द टर्म ऑफ द सिटिंग मेंबर्स। क्योंकि 2019 में जो स्टेटस चेंज हो रहा था, उस टाइम पे जो वहां पे राज्यसभा में एमपीज थे J&K से, उनके कुछ 2-3 साल बचे थे अभी फॉर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म। क्योंकि जो भी राज्यसभा एमपी बनता है, ही सर्व्स देयर फॉर 6 इयर्स, तो 6 साल के बाद रिटायरमेंट होता है फ्रॉम राज्यसभा। सो उन सबके कुछ 2-2, 3-3 साल बचे थे, तो इसीलिए इस सेक्शन में क्या लिखा कि कोई भी चेंज नहीं होगा किनके साथ, जो सिटिंग मेंबर्स है किसके, राज्यसभा के। सो सेक्शन 9 ओवरऑल इससे क्या बताया, एक तो 4 सीट्स होंगी कहां पे, राज्यसभा में, किसके लिए, J&K UT के लिए, और जो उस टाइम पे सिटिंग मेंबर्स थे वहां पे, उनके टर्म में कोई चेंज नहीं आएगा, दे विल कंटिन्यू द टर्म नॉर्मली जैसे वो कंटिन्यू कर रहे थे जब तक उनको रिटायरमेंट जब उनकी होगी तो वो नॉर्मल अपने टाइम पे होगी। दैट वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 9। इसके बाद नेक्स्ट इज सेक्शन 10। सेक्शन 10 किसके बारे में कह रहा है, दूसरे हाउस के बारे में। पहला था राज्यसभा, राज्यसभा में कैसे रिप्रेजेंट करेगा J&K UT, 4 लोग करेंगे रिप्रेजेंट कहां से, J&K UT से। सेकंड हाउस आई मेंशन जो लेजिस्लेचर में है सेंटर के, वो क्या है, लोकसभा। अब लोकसभा के लिए कितनी सीट्स होंगी अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन फ्रॉम J&K UT, वो किसमें बताया, सेक्शन 10 में। और सेक्शन 10 ने क्या बताया इसमें कि 5 सीट्स will be provided to J&K UT, और you can say allocated to J&K UT, जो फिल करनी होंगी J&K के लोगों को। क्योंकि लोकसभा में एज आई मेंशन कि जो लोकसभा में MP बन के जाते हैं उनके लिए लोग डायरेक्टली वोट करते हैं, तो इन 5 सीट्स पे जो इलेक्शन लड़ेंगे तो उसमें डायरेक्टली वोट करेंगे लोग, तो वो चुनेंगे अपने 5 मेंबर्स को, जो 5 मेंबर्स फिर रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, इनटू द लोकसभा। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसी सेक्शन में लिखा है 5 सीट्स किसको मिली, इट वाज दे वर एलोकेटेड टू J&K UT, एंड 1 सीट फॉर लद्दाख UT, 5 सीट्स फॉर J&K UT। दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 10, जो सेक्शन 10 ने कहा कि 5 सीट्स और 1 सीट अलग अलग यूटीज को मिल गई। ठीक है, सेकंड आफ्टर दिस देयर इज नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन 11th सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन ने कहा कि J&K UT में डिलिमिटेशन होगा। नाउ व्हाट डज डिलिमिटेशन एक्चुअली मीन, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को चेंज करना। अब देखो यहां पे फॉर एग्जांपल हर एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है नियर अबाउट 1.40 लाख पीपल, 1,40,000 लोगों को एक एमएलए रिप्रेजेंट करता है, यानी कि 1,40,000 लोगों पे एक एमएलए होता है। तो इस पॉपुलेशन में देखते फिर चेंज तो नहीं आई है, क्योंकि जो ये पॉपुलेशन और एमएलए रेशियो है ये अकॉर्डिंग टू द सेंसस, ये पुराना सेंसस है उसके बेसिस पे है, तब से पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। तो इसीलिए ये चेक करना पड़ता है कि कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, उसके हिसाब से डिलिमिटेशन यानी कि सीट्स इंक्रीज करनी होती है अकॉर्डिंग टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। तो इस सेक्शन 11 ने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, वो कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, इसके लिए एक ऑर्डर आएगा। ये सेक्शन 11 में लिखा था अबाउट डिलिमिटेशन ऑर्डर। सो एज आई मेंशन कि डिलिमिटेशन क्या होता है कि बाउंड्रीज चेंज की जाएंगी, किनकी, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट J&K UT, आई एम टॉकिंग अबाउट जो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनकी बाउंड्रीज चेंज की जाएंगी अकॉर्डिंग टू दी रिपोर्ट विच विल बी सबमिटेड बाय द कमीशन। डिलिमिटेशन कमीशन वो क्या बताएंगे कितनी सीट्स इंक्रीज करनी है, तो उनके हिसाब से वो सीट्स इंक्रीज हो जाएंगी। इसी का जो दूसरा पार्ट है सेक्शन 11 का पार्ट बी जो है, दिस वाज पार्ट ए। बी ने क्या लिखा कि जो भी इलेक्शन होंगे कहां पे, J&K UT में, और इलेक्शन विल बी, यू कैन से दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी रिस्पांसिबल फॉर द इलेक्शंस। जो लोकसभा इलेक्शंस कहां पे होंगे, J&K UT में। तो लोकसभा इलेक्शन क्या है, मतलब जब हम लोग सब लोग वोट करते हैं हु आर अबव द एज ऑफ 18 फॉर द एमपीज ऑफ लोकसभा। सो इलेक्शन कंडक्ट कौन करेगा, इट विल बी रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एज वेल एज लद्दाख UT में भी जो लोग एक सीट के लिए इलेक्शन होगा, जैसे मैंने पहले ही मेंशन किया 5 सीट्स और 1 सीट लद्दाख UT के लिए, जो वहां पे एक सीट के लिए इलेक्शन होगा वो भी कौन करेगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो आई विल मेंशन दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन कहां पे, इन J&K UT एज वेल एज इनटू द UT ऑफ लद्दाख। सो दैट वाज ऑल अबाउट सेक्शन 11।
ठीक है, इसके बाद 12th सेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, ठीक है, सो वी विल डायरेक्टली शिफ्ट टू 13th सेक्शन, बट फ्रॉम राइट फ्रॉम 13th सेक्शन अप टू 56, कैन से सेक्शन 13 टू सेक्शन 56, इस इन पूरे सेक्शंस में क्या लिखा गया है, यू कैन से दैट इट डील्स विद एलजी के कुछ प्रोविजंस है एज वेल एज लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएंडके यूटी। अभी तक हम सेंटर की बात कर रहे थे, सेंटर में कैसे जेएंडके यूटी और लद्दाख यूटी रिप्रेजेंट होगा। अब इसके आगे इन सेक्शंस में एक तो किसके बारे में लिखा है, एलजी के बारे में प्रोविजन, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, एज वेल एज जो यहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेके यूटी जो है, इसके लिए असेंबली जो होगी, इसके लिए क्या प्रोविजंस बनेंगे। So that is all mentioned from section 13 to section 56. So what is actually section 13 having? Section 13 says us that provisions Indian Constitution के एक आर्टिकल में आते हैं, that is article 239A. Article 239A. इस आर्टिकल में लिखा गया कि कैसे यूटी ऑफ पुडुचेरी या पौंडीचेरी वर्क करेगा, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगी, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे होगी, एलजी के क्या फंक्शंस होंगे, वो सब इस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में लिखे हैं, आर्टिकल 239A। तो सेक्शन 13 हमें सीधे कहता है जो सेम पौंडीचेरी के इस आर्टिकल में लिखे गए हैं, आर्टिकल 239A में, जो हिंदुस्तान के आईन में लिखे हैं, यही सेम प्रोविजंस अप्लाई होंगे किस पे, जेएंडके यूटी के लिए भी। दैट मींस जेएंडके पे अप्लाई किया गया कौन सा, पौंडीचेरी मॉडल, जो पुडुचेरी मॉडल है वो सेम अप्लाई किया जाएगा किस पे, जेएंडके पे। जैसे वहां पे यहां पे एलजी है, वहां पे भी सेम ऐसे ही क्या है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सो सिंपली सेक्शन 13 इज मेंशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, काफी बार पूछा गया जेएंडके एसएसबी एग्जाम्स में और जेकेएस में भी, कि सेक्शन जो ये विच ऑन विच मॉडल एक्चुअली जेएंडके यूटी इज रनिंग। सो इट्स एक्चुअली पौंडीचेरी मॉडल विच इटसेल्फ इज रनिंग ऑन आर्टिकल 239A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यही सब लिखा है सेक्शन 13 में कि यही सेम आर्टिकल इट विल बी ऑल्सो मेड एप्लीकेबल ऑन टू द जेएंडके यूटी। दैट इज ऑल अबाउट सेक्शन 13। तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट है सेक्शन 14। सेक्शन 14 में डिफरेंट प्रोविजंस दिए गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं इसका पार्ट ए क्या कहेगा हमसे, कि अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, क्योंकि एज आई मेंशन्ड पौंडीचेरी मॉडल पे ही चलेगा जेएंडके यूटी, तो इस आर्टिकल में क्या लिखा है पौंडीचेरी के लिए, कि वहां पे क्या होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, और वही होगा एडमिनिस्ट्रेटर। तो सेम जेएंडके के लिए भी रखा गया कि यहां पे भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A, ठीक है, इस आर्टिकल के हिसाब से यहां भी क्या चुना जाएगा, एक एलजी जो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटर होगा, ही विल बी द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ जेके यूटी। फिर से बता रहा हूं, एलजी को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। दैट मींस एलजी इज एक्चुअली ऑफिशियल ऑफ प्रेसिडेंट। एलजी वर्क्स अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट्स ऑर्डर्स, व्हाटएवर प्रेसिडेंट प्रोवाइड्स द ऑर्डर्स, इनको उन्हीं के हिसाब से काम करना पड़ता है। और ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239 चल रहा है, क्योंकि यही मॉडल ऐड होगा किस पे, जेएंडके पे, उस पे एप्लीकेबल होगा। तो इस मॉडल में यही लिखा है कि जेएंडके यूटी में जो है वो क्या होगा, एलजी एक होगा, जो एक होगा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऐसी इस आर्टिकल सेक्शन 14 में दूसरा पार्ट जो लिखा है, दैट इज पार्ट बी में क्या लिखा गया है, दैट यूटी ऑफ जेएंडके जो है, इसमें क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। जैसे मैंने पहली कहा यूटी ऑफ जेएंडके इज फॉर्म्ड विथ लेजिस्लेचर, तो वही बोला गया है यूटी ऑफ जेएंडके विल बी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, ये वही असेंबली है जहां पे एमएलएस बैठते हैं जो रिप्रेजेंट करेंगे यूटीज को। लेकिन यहां पे बस इतना बोला, यहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, काउंसिल नहीं होगा। असल में होता क्या, जैसे सेंटर में होता है लोकसभा और राज्यसभा, कुछ स्टेट्स में ऐसी 2 हाउसेज है, सेंटर में 2 हाउसेज है, दैट मींस बाई कैमरलिज्म कहते हैं उसको, विच मींस हैविंग 2 हाउसेज। ठीक है, लेकिन जो स्टेट्स, मैक्सिमम स्टेट्स है वहां पे 2 हाउसेज नहीं है, वहां पे एक ही हाउस होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे दोनों हाउसेज है, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट एज वेल एज लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ दैट स्टेट। हम तो सब जानते हैं कि एमएलए बनते हैं, वो कौन होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी है जहां पे एमएलसीज भी बनते हैं, दैट मींस मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इट्स सेम द मॉडल ऑफ सेंटर, जहां पे लोकसभा और राज्यसभा होता है, सेम कुछ स्टेट्स में क्या है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है। ठीक है, जो 6 स्टेट्स जिनके पास एक काउंसिल है वो कौन से है, एक तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका।
So only 6 states are there in India which is having bicameralism. Yeah, that means 2 houses. जहां पे MLAs ही बनते, एक हाउस में MLAs बैठते, दूसरा हाउस होता है जहां पे MLCs बैठते, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल. 2019 से पहले JNK भी एक ऐसा स्टेट था जहां पे काउंसिल था बिफोर 2019. बट आफ्टर 2019 सिर्फ यहां पे बोला गया, यहां पे यूटी ऑफ JNK में क्या होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगा. वही कहता है पार्ट बी ऑफ सेक्शन 14. सो नेक्स्ट पार्ट जो है इसी सेक्शन का, दैट विल बी पार्ट सी. What this part C is actually saying us कि अब इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो यहां पे बात हो रही थी कि JNK यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स होंगी, यानी कि कितने एमएलएस को वहां पे बिठाया जाएगा. तो पार्ट सी ने लिखा कि नंबर ऑफ सीट्स जो यहां पे बैठेंगे वो होंगे 107. दैट मींस 107 एमएलएस आएंगे जो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करेंगे कहां पे, इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JK यूटी. लेकिन जो नेक्स्ट प्रोविजन था दैट वाज पार्ट डी ऑफ दिस सेक्शन 14, इसने क्या कहा कि इन 107 सीट्स में से 24 रहेंगे वैकेंट. ये वैकेंट किसके लिए रखी जाएंगी, फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर. यानी कि जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को जोड़ा जाएगा विद दिस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के साथ, तो वहां से ये 24 सीट्स आएंगी, वहां से वो अपने लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे. तो दैट मींस इस टाइम पे इस हिसाब से जो इफेक्टिव स्ट्रेंथ थी वो 107 से कम थी. ठीक है, तो what actually was there 107 seats were actually given to the legislative assembly of JNK, but इन 107 में से 24 रहेंगे वैकेंट, किसके लिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए. ठीक है, इसी का फिर नेक्स्ट प्रोविजन था दैट वाज पार्ट ई सेक्शन 14 का. पार्ट ई ने क्या कहा कि यहां पे रिजर्वेशन दी जाएगी किनको, इसी लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर रहा हूं, जो एमएलए सीट्स है, इन सीट्स के लिए रिजर्वेशन भी होगी. जैसे हम जानते हैं कि जब भी कभी जैसा एम्प्लॉयमेंट निकलता है, कोई पोस्ट निकलते हैं या कहीं पे कॉलेज एडमिशन निकलते हैं, उनमें रिजर्वेशन होता है ओबीसी, एससी, एसटीज के लिए. तो सेम यहां पे भी है, जितनी एमएलए सीट्स है इसमें से रिजर्वेशन मिलेगी किनको, एससीज एंड एसटीज को. शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगी. That was actually the next part of this section 14th. अब सवाल ये उठता है कि रिजर्वेशन किस बेसिस पे मिलेगी. हम कैसे बताएं कि कितनी सीट्स रखनी है एससीज के लिए, कितनी सीट्स रखनी है एसटीज के लिए जो रिप्रेजेंट करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK में. तो इसके लिए जो पार्ट नेक्स्ट आया, इसी पार्ट में लिखा था इस सेक्शन 14 के पार्ट में कि इनको सीट्स मिलेंगी, इनके लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी, बट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. फॉर एग्जाम्पल मान लो कि JNK में 10 लाख लोग रह रहे हैं, मान लो 1 लाख के लिए एक एमएलए है. दैट मींस कितने एमएलएस बनेंगे, 10 एमएलएस बनेंगे, 10 एमएलएस, बिकॉज आई मेंशन 1 लाख के लिए एक एमएलए है. ठीक है, मान लो टोटल 10 सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 10 सीट्स बटी किसमें, 10 लाख लोगों में. अब मान लो 10 लाख लोगों में से 3 लाख जो है एससीज है, तो दैट मींस 3 सीट्स रिजर्व हो जाएंगे किनके लिए, एससीज के लिए. 2 लाख एसटीज है, तो 2 सीट्स किनके लिए बनेंगी, एसटीज के लिए. क्योंकि हमने क्या देखा था प्रोपोर्शन, मान लो कि 1 लाख पे एक एमएलए होगा. अब पॉपुलेशन मान लो वही 3 लाख अगर एससीज की है तो 3 सीट्स ऑटोमेटिकली किसको जाएंगे, शेड्यूल कास्ट को. अगर 20 लाख लोग एसटीज है तो 2 सीट्स किसको जाएंगे, शेड्यूल ट्राइब को. इसी को हमने कहा कि इनको रिजर्वेशन मिलेगी, बट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन. तो पॉपुलेशन की बेसिस पे दे विल प्रोवाइड रिजर्वेशन इनटू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ JNK, जो यहां पे एमएलएस रहेंगे. So that was all for today. In next lecture I will mention the next section right from section 15 up to the जो भी हम देखेंगे different parts बनाते जाऊंगा मैं इसके. तो in coming 4 to 5 lectures I will conclude this whole JNK Reorganization Act. But whatever the sections we are discussing here, believe me, directly questions are being asked from these sections. Directly पूछा जाता है कि जैसे यही 107 सीट्स है, कितने वैकेंट है, या जिस डिलिमिटेशन कमीशन किस सेक्शन ने बताया हमें. ठीक है, तो ये सब जो है ये पूछा जाता है डायरेक्टली इनटू द JNK SSB examinations. Thank you for today. We'll meet you people in next lecture. Take care till then.